Hi guys, welcome back to the YouTube channel of IMS Prayagraj. So let's start with the set number 45 of this particular playlist. First pause the video, try it on your own and then proceed with the video solutions. So this particular set is on deductive reasoning which I have taken from previous Simcats, and the set says Amna used to run a small bike repair garage in the market of a Bangalan in 1980. Bimal and Dina were the only two employees in the garage. Table 1 is the rate chart of all the service offered in the garage. Amna was an expert mechanic and he could perform all the service mentioned in the rate chart. Bimal was yet to learn the light repair and so he could perform all the service except light repair. Dina was a novice and he was yet to learn about light and tire repair, so Dina used to perform only the other three services. Amla divided the hours of operation of the garage into four business hours: morning, afternoon, evening, and night. None of the three ever served more than two customers in the same business hour. If anyone had served two customers in the same business hour, the services they render are different. Table 2 shows the details of the revenue generated by the garage on a given day in different business hour. Each customer who came to the garage on that day had asked for exactly one service. Further, it is known that on that day, Amla generated 1,110 rupees and Vimal generated rupees 870 as a revenue. All of them have performed all the service they can perform at least once and at most twice on that day. No service was performed more than twice in any business hour. All the service offered were performed by one or the other three mechanic out of the three, both in the morning business hour and in afternoon business hour. The last customer who asked for the light repair came in the afternoon business hour, and the last customer who asked for the tire repair came in evening business hour. Each of them earned at least 100 rupees in every business hour. टेबल दिया हुआ टेबल 1 और टेबल 2, एक बार क्वेश्चन भी पढ़ लेते हैं. हाउ मेनी कस्टमर केम टू द गैराज, हाउ मेनी कस्टमर केम फॉर वॉशिंग, हु अमंग द फॉलोइंग who among the three generated 60% revenue, approximately what percent of his or revenue on that day was generated. Additional information कुछ ये दी हुई है और क्वेश्चन 5 पूछा how many revenue was generated, how much revenue was generated by Amla in the uh, नाइट बिजनेस आवर. ठीक है. सो बेसिकली डिडक्टिव रीजनिंग का सेट जहाँ पे अपने को तीन कैरेक्टर के बारे में बताया हुआ, ए बी और डी. दे आर रनिंग अ गराज और दे आर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सर्विसेज, दे आर प्रोवाइडिंग फॉलोइंग सर्विसेज. वो पांच में से कोई अलग अलग सर्विस दे रहे होंगे और उनके प्राइस बताए गए, रेट चार्ट दिया गया. ठीक है. इसके अलावा अमला ने डिसाइड करा कि वो 4 वर्किंग आवर्स में ऑपरेट करेगा. हर वर्किंग आवर पे मैक्स टू मैक्स कोई एक इंडिविजुअल दो कस्टमर को एंटरटेन कर सकता है. ठीक है. वहां पे लिखा हुआ पॉइंट यहाँ पे अगर देखो तो ये नन ऑफ दी none of the three served more than two customer in the same business hour. किसी ने भी दो से ज्यादा कस्टमर को सर्व नहीं करा, और अगर वो किसी ने भी दो कस्टमर को सर्व करा तो दोनों को अलग अलग सर्विसेज के लिए सर्व करा होगा. ठीक है. ऐसे क्वेश्चंस कैट के अंदर अक्सर आते हैं. मतलब आप कैट 2024 2023, ऑब्वियसली 24 तो आने वाला है, बट 23-22 वाले पेपर में जाओगे तो यू विल फाइंड सिमिलर सेट ऑफ क्वेश्चन इन दी 23 स्लॉट, 22 स्लॉट, 21. 22 में एक एसी रिपेयर वाला ऐसा ही कुछ है. लास्ट वाले में एफआईडी वाला है, मतलब न्यूट्रिशन और वो वाला है. उसके पहले भी हर साल हर बार एक ऐसा पेपर तो रहता ही रहता है. तो डिडक्टिव रीजनिंग का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम. इसके अंदर गेम कहाँ पे होती है? पूरी गेम होती है कि आप टेबल कैसे डिजाइन करते हो. अगर आपने टेबल ढंग का डिजाइन कर लिया तो चीजें बहुत सॉर्टेड दिखाई देती हैं और चीजें बहुत इजी दिखाई देती है. अगर आपने टेबल कॉम्प्लेक्स डिजाइन किया है, मोस्टली आई सी पीपल सॉल्विंग दिस सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम वेरी रैंडमली. इन दैट केस यू लैंड टू अ सिचुएशन वेयर आपको वैल्यू की जरूरत नहीं और वो वैल्यू में परेशान होते हैं. 15 मिनट बाद यू रियलाइज की तो क्वेश्चन में पूछा नहीं है. सो इट्स बेटर यू क्रिएट अ सॉर्टेड टेबल. ये चीज मैं पहले भी सेट्स में कह चुका हूँ. अगर आप पीछे के सेट्स डिडक्टिव रीजनिंग वाले सॉल्व करोगे तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व कि मैं हमेशा टेबल क्रिएट करता हूँ, देन आई मूव अहेड विद द सॉल्यूशन पार्ट. सो इसके अंदर मैंने क्या करा हुआ है, अमला ए बी डी तीनों को मेंशन कर दिया. मॉर्निंग नून इवनिंग नाइट स्लॉट ले लिया, टोटल अमाउंट दे दिया, बिकॉज यहाँ पे मेरे को अमाउंट को ब्रेक करना है. क्वेश्चन देख के समझ आ रहा है तो मैंने ये सारा अमाउंट लिख दिया. ठीक है. अब अपने को क्या पता है, चलो 810 रुपए है जो कि मॉर्निंग में ये इकट्ठा कर रहा होता है. अब वो 810 रुपए कैसे आए होंगे नहीं पता. 660 रुपए हैं जो कि इसने नून में इकट्ठा किए हैं. इवनिंग में भाई साहब ने 620 रुपए इकट्ठा किए हैं और नाइट में 440 रुपए इकट्ठा किए. तो टोटल कितना अमाउंट इकट्ठा हुआ है इसका? 0 4 2 6 6 12 1 13 कैरी 1 9 15 21 और 24, सॉरी 25. ठीक है. 2530, यानी कि इसने जो है पूरे दिन में 2530 वाला अमाउंट इकट्ठा करा था. ठीक है. अब ये कैसे मिला होगा? ए बी और डी का मिला के, जिसमें से पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है कि ए ने इतना अमाउंट इकट्ठा किया और बी ने 870 किया, यानी बचा हुआ अमाउंट डी ने इकट्ठा किया होगा. यानी कि कितना बन जाएगा? 0 0 7 1 8 8 1 9 9 1980, यानी कि
2530 माइनस 1980 कर देंगे तो 0, 5 और 50, यानी कि ये भाई साहब ने 550 रुपए इकट्ठे किए होंगे पूरे दिन में। ठीक है, अब ये जो सर्विसेज मतलब ये जो पैसा इकट्ठा हुआ ना, ये कैसे इकट्ठा हुआ होगा? ये इन्होंने हर सर्विस को दिया होगा, उसके हिसाब से हुआ होगा। ठीक है, अब अपने को क्या पता है, पॉइंट पढ़ते हैं। पहले अपने को पता था कि ये एट अ टाइम 2 कस्टमर को ही डील कर सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं कर सकता। जब 2 को कर रहे हो तो दोनों को अलग अलग सर्विसेज दे रहे हो, तो ये पैसेज नंबर 1 में पीछे दिया हुआ था। अब पैसेज 2 से अपने हम इन्फॉर्मेशन उठाते हैं। ए जनरेटेड, वो जो लिख दिया वो तो लिख दिया, बी का भी लिख दिया। ऑल ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड ऑल द सर्विस दे कैन परफॉर्म एटलीस्ट वंस एंड एट मोस्ट ट्वाइस ऑन दैट डे। हर बंदे ने ना जो सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता था वो सर्विस उसने की ही की है, या तो वो एक बार की है या तो वो 2 बार की, 2 से बार से ज्यादा नहीं की होगी। यानी कि ए जो कि 5 सर्विस दे पाता है तो उसने 5 दिया होगा, मतलब किसी किसी अलग अलग कस्टमर को ये 5 तो परफॉर्म किया। हो सकता है इन 5 में से कुछ सर्विसेज ऐसे हो जो एक बार से ज्यादा परफॉर्म किए। ठीक है, अच्छा, ऑल्सो अमला क्या कर सकता है, मिनिमम कितने कस्टमर को कैटर कर सकता है, 4, हर स्लॉट में एक एक, और मैक्सिमम 8 कस्टमर को कैटर कर सकता था। ठीक है, चलो अभी देखते हैं, इनको पहले जोड़ लेते हैं। 0 0 0 ये आ गया 0, 7 5 12, 12 3 15, 15 1 16, कैरी 1 1 2 3 4 5 6, यानी कि अमला अगर 5 कस्टमर्स को डील करता है और ये 5 सर्विसेज देना देता है, विच इज मैंडेटरी फॉर हिम, बिकॉज क्या लिखा था कि हर आदमी अपनी जो सर्विसेज है जो देता है वो एटलीस्ट एक बार तो सबको दे ही रहा है। ठीक है, तो अमला जो है 660 रुपए तो ऐसे ही इकट्ठा कर लेगा। जो रिमेनिंग अमाउंट है वो कितना बच रहा है, 11 10 में से 660 को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 40 50 और 450, यानी कि 450 जैसा अमाउंट है जो कि उसने इन्हीं सर्विसेज में से इन्हीं मतलब ये गिवन 5 सर्विसेज में से कुछ सर्विसेज उसने दोबारा परफॉर्म की होगी, जिसकी वजह से ही वुड हैव बीन एबल टू क्रिएट मोर 450 एज अ रेवेन्यू। ठीक है, वो सर्विसेज कौन सी हो सकती है 450 बनाने के लिए? क्या वो एक सर्विस से बना सकता है? नहीं, तो मतलब 5 तो आ ही रहा है, मैक्सिमम 8 तक जा सकते थे। 5 तो अपने को पता है कि 5 सर्विस दे रहा है, और मैक्सिमम अमला कैन गो टू 8 सर्विसेज। ठीक है, बिकॉज हर स्लॉट में 2 कस्टमर से ज्यादा वो डील नहीं कर सकता। ठीक है, अगर वो 6 सर्विस होता है तो पॉसिबल नहीं है। अगर वो 7 सर्विसेज करता है तो क्या मैं 2 को जोड़ के बना सकता हूँ? पॉसिबल नहीं है। अगर वो 8 करता है तो 8 को मतलब 3 को जोड़ के बना सकता हूँ। 3 को जोड़ने के लिए 170 150 130, 170 और 150 और 130 को जोड़ेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा 320 320, और ये तुम्हारा यहाँ पे बन जाएगा। यानी कि अमला जो है टोटल 8 कस्टमर को डील कर रहा होगा, यानी कि हर आवर में ही वुड बी डीलिंग विद 2 कस्टमर्स, जिसमें से वो वन जो ये 660 का अमाउंट है ये 5 से हो रहा होगा, और जो ये 450 का अमाउंट है ये 170 150 और 130 वाली सर्विसेज को एक्स्ट्रा मतलब दोबारा देके वो कमा रहा होगा। ठीक है, सिमिलरली वी हैव टू फिगर आउट फॉर बिमल ऑल्सो। बिमल के बारे में क्या पता था, वो यही 4 सर्विसेज हैं जो वो दे पाता है, यानी कि वो 170 वाली नहीं देता। यानी कि उसके केस में 5 3 8 1 9 और 4 490 जैसा अमाउंट है जो कि वो एक एक बार देने पे कर पाएगा। यानी कि बिमल कुड गिव मिनिमम 4, मतलब 4 कस्टमर्स को वो कर सकता है ऐसा, और मैक्सिमम 8 कस्टमर नहीं, मैक्सिमम 7 कस्टमर इसके हो सकते हैं। ठीक है, नहीं मैक्सिमम इसके भी 8 हो सकते हैं, बिकॉज हर कस्टमर को ये वही सर्विसेज को डबल करके दे सकता था। ठीक है, अभी क्या है ना, इसका 870 है, 870 के बाद इसका क्या अमाउंट बन रहा है, इसका अमाउंट बन रहा है 870 के बाद मतलब 490 में, 490 में 400 जोड़ेंगे तो 890, यानी कि 380 जैसा अमाउंट इसका और बनाना है। ठीक है, 380 कैसे बनेगा अगर ये सोच लिया जाए तो? ठीक है, 380 लाने के लिए ये 1 2 3 4 ऐसा हो सकता है, और यही सर्विसेज को वो दोबारा दे दे। ठीक है, अब इन गिवन 4 सर्विसेज में से किसी 2 सर्विस या 3 सर्विस को मिला के हम 380 बना सकते हैं। 2 को मिला के तो 280 बन सकता है मैक्स टू मैक्स, 3 को मिलाए तो ये बन सकता है कि ये और ये। ठीक है, तो हाँ इसका क्या कर सकते हैं, 4 पुरानी वाली मतलब 4 सर्विसेज एक एक बार, और ये वाली जो 3 सर्विसेज है ये डबल टाइम, यानी कि इसकी टोटल जो है ये 7 अलग अलग कस्टमर्स को डील कर रहा होगा, जिसमें से 490 इसका 150 130 110 100 से बनेगा। वेयर एज ये कैसे बनेगा, जो रिमेनिंग 380 है वो 150 प्लस 130 प्लस 100 रुपए वाले से बन रहा होगा। ठीक है, अच्छा चलो 550 के लिए देखते हैं। अब दीना के बारे में पता है कि दीना इन 3 कस्टमर्स के दम पे चलता है, यानी कि दीना का मिनिमम
तो वही 4 और मैक्सिमम 8 हो सकता था, मैक्सिमम 8 तो नहीं बनेगा, मैक्सिमम इसका 6 बन सकता है, बिकॉज किसी भी सर्विस को ये 2 बार से ज्यादा नहीं दे सकता है, तो मैक्सिमम इसका 6 ही जा सकता है। ठीक है, इसका क्या बना, 130 110 इज 240, 240 और 100 यानी कि 440। ठीक है, 130 और 110, 110 कितना हो गया तुम्हारा 240, 240 और 340, यानी कि इस बंदे का आ गया 340 प्लस 210। 210 ये कैसे बनाया होगा, ये 100 प्लस 110 से बनाएगा, ये तो यार क्लियर कट इसका दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये कितने कस्टमर्स को डील करने वाला है, यहाँ से 3 कस्टमर्स, यहाँ पे 2 कस्टमर और जोड़ लें तो 5 कस्टमर, यानी कि पूरे दिन में 8 7 15 और 5, यानी कि ये 20 कस्टमर्स को ये लोग कैटर करने के बाद ये पूरा गराज इतना अमाउंट इकट्ठा कर पा रहा होगा। ठीक है, पहला तो पॉइंट ये समझ आ गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, और भी इंफॉर्मेशन है। ऑल ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड ऑल द सर्विस दे कैन परफॉर्म एटलीस्ट वंस, एंड ये पॉइंट यूज करके हमने नंबर को थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर लिया। नो सर्विसेज वर परफॉर्म मोर देन ट्वाइस इन एनी बिजनेस आवर। ठीक है, कोई भी सर्विस ऐसी नहीं है जो एक बार से ज्यादा परफॉर्म की हो। अच्छा, ये एक पॉइंट बड़ा लॉजिक हो सकता है, मतलब जैसे यहाँ पे नोटिस करो 170 को 2 बार आना है, तो 170 को 2 अलग अलग स्लॉट में आना पड़ेगा, या 150 को 2 बार आना है तो वो दोनों अलग अलग स्लॉट में आएगी, 130 को आना है तो 2 अलग अलग स्लॉट में आएगी फॉर एन इंडिविजुअल। ठीक है, अच्छा, all the service offered were performed by one or the other mechanic out of the three, both in the morning hours and in the afternoon hours। अच्छा, ये जितनी भी सर्विसेज हैं ये मॉर्निंग और नून आवर में सबको ये दे रहे हैं, यानी ये जो पूरा पांचों है ये देना ही देना, यानी कि ये 170 प्लस 150 प्लस 130 प्लस 110 प्लस 100। ठीक है, यानी कि ये पांचों सर्विस नून में तो आई होंगी, बिकॉज नून का जो रेवेन्यू है वो 660 है, और वो मॉर्निंग में भी आ रही होंगी। मॉर्निंग में क्या है, 170 प्लस 150 प्लस 130 प्लस 110 प्लस 100। अब क्या हुआ, ये 660 के बाद 150 वाला अमाउंट है जो बच रहा है, तो 150 का पूरा एक मुश्त अमाउंट है जो कि यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि मॉर्निंग वाले स्लॉट में 6 कस्टमर्स इन्होंने डील किए होंगे, नून वाले में इन्होंने 5 कस्टमर डील किए हैं, ये पता चल रहा है। अच्छा, फिर क्या बचा, 620 और 440 वाला, यहाँ पे कौन से कस्टमर आ रहे होंगे, अगर ध्यान दो तो 170 का दोनों जा चुका है, 150 वाले 2 जा चुके हैं, अब रिमेनिंग जो अमाउंट है वो देखना पड़ेगा। 440 कैसे बन सकता है, 440 के लिए अपने को बेयर मिनिमम एक एक कस्टमर तो देने ही देना है। एक एक कस्टमर देने का मतलब 150 कुछ ऐसा बना सकते हैं कि 150 और 150 दे दें, यानी कि 150 प्लस 150 विच बिकम्स 300। 300 में 140 नहीं ऐड नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ, अगर 440 और इसको भी बना सकते हैं क्या। पॉइंट नंबर 3 वैसे मैंने यूज कर लिया, पॉइंट नंबर 4 भी यूज कर लिया। The last customer who asked for the light repair came in afternoon business hour, and the last customer who asked for tire repair came in the evening business hour। अच्छा, एक लास्ट कस्टमर जो कि लाइट रिपेयर के लिए आया था, लाइट रिपेयर यानी कि ये 170 वाला, 170 वाला काम तो यही कर रहा होता है, यानी कि वो यहीं पे आया होगा, यानी कि 170 वाला जो दूसरा कस्टमर है वो यहाँ पे आया होगा। ठीक है, ये भी एक चीज है जो क्लैरिटी के साथ मिल गई। 170 वाला यहाँ पे आया होगा, 170 वाला यहाँ पे आया होगा, क्योंकि 170 वाला केवल यही अमला ही है जो हैंडल करता है ये वाली पर्टिकुलर लाइट रिपेयर वाली सर्विस को। ठीक है, एंड हमें क्या पता था, कोई भी एक इंडिविजुअल एक स्लॉट में सेम सर्विस को रेंडर नहीं कर सकता, मतलब सेम सर्विसेज वो नहीं कर सकता था। ठीक है, नो सर्विसेज वाज परफॉर्म्ड मोर देन ट्वाइस इन एनी बिजनेस आवर। ठीक, अच्छा, और देखते हैं और क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर। 170 में क्या कुछ हम ऐड कर सकते हैं, मतलब अभी तो यार ये पता नहीं है 170 में मैं क्या ऐड करूँ। ठीक है, मैं क्या इस वाले 170 में कुछ ऐड कर सकता हूँ, नहीं पता। ये 6 है, ये 5 है, यानी कि 11, रिमेनिंग 9 सर्विसेज हैं जो कि यहाँ पे अभी भी फिगर आउट करना बाकी है। ठीक है, अब इसको कैसे करा जाए, थोड़ा और देख लेते, कुछ और पॉइंट है जो छूट रहा हो। ठीक है, द लास्ट customer who asked for the light repair came in the afternoon business, and the last customer who asked for the tire repair, अच्छा ये पॉइंट भी जो लिखा है, and the last customer who came for the tire repair came in the evening business hour। टायर रिपेयर वाला कौन सा, ये 150 वाला है, यानी कि अगर ये 150 है तो पीछे कितना हिसाब रहेगा इसको बनाने का, 470 का। ठीक है, 470 जैसा कुछ अपने को बनाना है। ठीक है, अगर ध्यान दो तो 150 अपने को कितनी बार आना था, यहाँ पे ना इसको थोड़ा लिख लेते हैं कि ये आना है 2 बारी। ठीक है, 150 वाला कितनी बार आना था, 150 2 बार इसके लिए आना था, 150 2 बार इसके लिए आना था, यानी कि 150 को आना था 4 बारी, तो 4 बार आ गया क्या, एक बार यहाँ पे आ गया है, एक बार यहाँ पे आ गया है, 2 बार यहाँ पे आ गया। ठीक है,
अच्छा 130 की बात करें, 130 कितनी बार आना था? 2 बार इसके लिए आना था, 2 बार इसके लिए आना था, 1 बार इसके लिए आना था, यानी कि 5 बार आना था। ठीक है, तो 130 कितनी बार आ चुका है? 1 बार यहाँ पे आ चुका है, 1 बार यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, यानी कि 2 बार आ चुका है ना। 1 बार देखो यहाँ पे आ गया, 1 बार यहाँ पे आ गया, यानी जो बचा हुआ 130 2 बार 3 बार जो आना बाकी है वो इन दोनों में ही आएगा। ठीक है, क्या मैं 2 बार 130 यहाँ पे दे सकता हूँ? 3 बार तो 130 नहीं दे पाऊंगा ना, तीनों बार देने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? 130 130 130 पॉसिबल है। रुक जाता हूँ मैं, थोड़ा और देखते हैं ना। 110 पे दिमाग लगाते हैं। 110 कितनी बार आना है? 110 यहाँ पे 1 बार आना है, यहाँ पे भी 1 बार आना है, यहाँ पे 2 बार आना है, यानी कि 110 आपका 4 बार आ रहा है। 100 कितनी बार आने वाला है? 100 1 बार यहाँ पे आने वाला है, 2 बार यहाँ पे आने वाला है, 2 बार यहाँ पे आने वाला है, यहाँ पे यानी कि 5 बार आने वाला है। तो 2 4 6 6 5 11 11 और 4 15 15 5 20, यानी कि ये भी परफेक्ट बना हुआ है। अच्छा 110 को चेक कर लें। 110 4 बार आने वाला था, 1 बार इधर आ गया, 1 बार इधर आ गया, यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, 100 1 बार इधर आ गया, 1 बार इधर आ गया, बचा हुआ 3 आ सकता है यहाँ पे। ठीक है, 440 पे दिमाग लगाते हैं ना। 440 है जो नंबर ब्रेक हो सकता है। 440 में यार 110 को 4 बार दे सकते हैं, बट वो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज चारों लोग मतलब वो रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो 110 4 बार नहीं दे सकते। व्हाट वी कैन डू इसकी 130 100 और 110 और 100 नहीं, हाँ मतलब सही है। 110 और 100, 230 230 240 और 100, ये एक चीज है जो बना सकते हैं 440 को ब्रेक करने का, और कुछ नहीं बन सकता। मतलब 440 ऐसा नंबर पहुंचाने के लिए मेरे को यही एक नंबर है जो क्रंच होगा। बेसिकली काकुरो का लॉजिक है जो तुमको दिमाग के अंदर यहाँ पे चलना चाहिए, नंबर डिस्ट्रीब्यूट करने का समझना चाहिए। अब मेरे को क्या समझ आ रहा है, नाइट के लिए मेरे को 4 अलग अलग कस्टमर्स के थ्रू ये 440 वाला अमाउंट हो सकता है। तो 6 5 11 4 15, यानी कि यहाँ पे 5 कस्टमर्स इन्होंने डील किए होंगे। ठीक है, अच्छा वो 620 में कितने बच गए होंगे? एक तो 150 है, 150 के बाद क्या बच रहा है? 130 बच रहा है 2 बारी। ठीक है, 260 और 260 और 50, 310 310 410, 410 के पीछे क्या बच गया? 210 जैसा अमाउंट अभी भी बाकी है, यानी कि 100 और 110 यहाँ पे भर रहा हूँ। तो 100 कितनी बार आ गया? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार। 110 कितनी बार आ गया? 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार। परफेक्ट, यानी कि ये पूरी कहानी मेरी यहाँ पे सेट हो चुकी है। अच्छा, क्या इनको मैं अंदर की तरफ भर पाऊंगा? क्या कुछ चीजें मिल सकती हैं क्या? यार अंदर की तरफ तो पता नहीं, चलते हैं क्वेश्चन में देखते हैं। बिकॉज यार इनके लिए ना कुछ ज्यादा नहीं बता पा रहे। इनका पता है 170 आना है, इनका पता था कि वो शाम में 150 वाला काम करता है, बट कौन करता है ये नहीं पता। एक तो बिमल भी कर सकता है और ए भी कर सकता है, तो इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में ना कुछ ज्यादा हम कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, शायद क्वेश्चन के थ्रू कुछ हेल्प मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हाउ मेनी कस्टमर केम टू द गराज ऑन दैट डे। तो 8 + 7 + 5 यानी कि 20। तो यार ये तो आंसर एकदम मिल गया 20 का, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। हाउ मेनी कस्टमर केम फॉर वॉशिंग टू गराज ऑन दैट डे। वॉशिंग वाले कितने थे? 100 वाले 5 कस्टमर, यानी कि 5। ये तो यार देखो नंबर क्रंचिंग से मिला हुआ है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो भी मिला वो नंबर क्रंचिंग से मिला। इट हैज नथिंग टू डू विद दिस पार्ट। इस वाले से तो मतलब नहीं है। अगर तुम नंबर क्रंचिंग कर ले गए हो तो तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है who among the three generated 60% or more of their respective revenue on that day through top services with the highest earning। ठीक है, अमला की बात करें, ए क्या करता है? ए की जो टॉप की अर्निंग है वो इन दोनों से हो सकती है, यानी कि 170 2 बारी, 150 2 बारी। 150 2 बारी का मतलब 300 और 340, यानी कि 640। 640 बटे 1180, 1180 में 60% यानी 660 होना चाहिए। यानी ओनली अमला तो नहीं हो सकता, मतलब ए तो खैर हो ही नहीं सकता। तो ये भी गया और ये भी गया, ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। बिमला पे चेक कर लेते हैं तो अपने को शायद हेल्प मिल जाए। बिमला क्या करता है? ये वाला ये दो 2 बार है, 150 वाले भी 2 बार है और 130 वाले भी 2 बार है। 150 वाले 2 बार यानी कि 300, और 130 वाले 2 बार यानी कि 260। 260 और 300 300 560, 870। 870 पे 60% करेंगे तो 900 पे 60% इस 540, और इनका कितना मैंने बनाया था? 560। हाँ, ये आ रहा है, यानी कि आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली फिर से मैं लॉजिक बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का लॉजिक क्या था कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपनी टॉप 2 सर्विसेज के थ्रू 60% से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट कर पा रहे हैं। ठीक है, फिर बता रहा हूँ टॉप 2 सर्विसेज। तो जैसे मैंने क्या चेक करा, ए क्या कर रहा है? ए की टॉप 2 सर्विसेज ये दो हैं। इसने 170 वाले 2 कस्टमर
को मतलब हेल्प करी थी, सर्विस दी थी, और 150 वाले 2 कस्टमर को। तो टोटल रेवेन्यू विच ही कैन मेक थ्रू दियर हिज टॉप सर्विस वाज 340 और 300 640 640 डिवाइडेड बाई 1110 करा था, जो कि 60% नहीं बना, इसलिए अमला हटाया। अमला हटने से ऑप्शन नंबर डी भी हट गया था। ठीक है, और बिमला पे चेक करा, बिमला क्या करता है, ये दो इसकी टॉप सर्विसेज हैं। ठीक है, टायर रिपेयर और फ्यूल टैंक रिपेयर। तो 150 के भी 2 कस्टमर वो डील कर रहा है, 130 के 2 कस्टमर डील कर रहा है। तो 150 के 2 कस्टमर कितने बन गए, 150 का डबल 300, और इधर भी 150 इधर 560, 870 का 60% 500 से 540 से ज्यादा होता है, तो वो 560 है। तो यानी आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, बोथ बिमला एंड डीना। क्वेश्चन नंबर 4, approximately what percent of his or revenue on that day was generated by Amla in the morning business hour? मॉर्निंग बिजनेस आवर की बात करें, मॉर्निंग बिजनेस आवर में यार ये है, ठीक है, ये 1110 वाला। ठीक है, अब अगर ध्यान दो तो यार ये दोनों ही, मतलब इसने भी 2 करे होंगे, इसने भी 2 करे, इसने भी 2 करे होंगे। मॉर्निंग बिजनेस आवर में वो मैक्सिमम कितना कर सकता है, अगर हमें ये फिगर आउट करना है, तो मेरे को यहाँ पे एक वैल्यू और मिलनी चाहिए थी। अब वो कैसे मिलेगी, जरा वो सोचते हैं। क्या कुछ ऐसा पॉइंट है जो हम यूज कर सकते हैं? एक बार क्वेश्चन पे मतलब पैसेज देख लेते हैं, शायद कुछ पॉइंट हमसे छूट गया हो। बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 2 3 वाज प्योरली ऑन नंबर डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज नथिंग टू विद दी दिस वाले लॉजिक, ये वाले लॉजिक। तो एक बार देख लेते हैं। ए वाला पॉइंट हो गया था, ऑल ऑफ देम हैव परफॉर्म्ड ऑल द सर्विस दे कैन परफॉर्म एटलीस्ट वंस एंड मोस्ट। ठीक है, नो सर्विसेज और परफॉर्म मोर देन ट्वाइस इन एनी बिजनेस आवर्स। ठीक है, all the services were offered by one of the other mechanic out of the three both in the morning business hour and in the afternoon business hour. The last customer who came for light repair came in the afternoon business hour, and the last customer who asked for the tire repair came in the, ठीक है, अगर यहाँ पे ना ध्यान दो, टायर रिपेयर वाला, हाँ ये वाला ना, ये पॉइंट था टायर रिपेयर वाला। तो टायर रिपेयर वाले में क्या था कि टायर रिपेयर वाले में अगर ध्यान दो तो हमने 150 वाले एक यहाँ निकाला था, एक यहाँ निकाला था, एक यहाँ निकाला था, एक यहाँ निकाला था। एंड सिमिलरली हमने एक लॉजिक यूज करा था लाइट रिपेयर वाला, जिसमें 170 यहाँ रखा था, 170 यहाँ रखा था। ठीक है, ठीक है, हाँ तो यार ये तो मिल सकता है ना, 150 यहाँ पे मिल जाएगा। एक चीज तो यार ये चीज हमें मिलनी चाहिए थी, पहले हमने ये नोटिस नहीं करी। देखो यहाँ पे 170 और 170 को अलग अलग कर दिया। अब ये जो 150 है, ये भी 150, ये दो लोगों को देना है, ये किसी सेम बंदे के पास नहीं आ सकता था। ये दोनों वैल्यूज 150 वाली दीना के पास नहीं जा सकती थी, ना ही बिमल के पास, दोनों आ सकती थी। तो एक बिमल को देना पड़ेगा और एक इसको देना पड़ेगा, यानी कि बिमल के लिए भी 150 प्लस मिल गया। ठीक है, तो ये वाला चीज आ गया, यानी कि इसने, अमला ने क्या करा होगा, 320 रुपए मॉर्निंग वाले स्लॉट में क्रिएट करें, कितने में से, 1110 में से, यानी कि 320 डिवाइडेड बाई 1110, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 300 1100 बटा, यानी कि 2 के टेबल में, तो 111 डिवाइडेड बाई 320 मान लो, तो कितना बन गया, 2 टाइम्स करेंगे तो 222, ये आ गया तुम्हारा 8, ये आ गया तुम्हारा 98, ये कट गया 8, यानी कि ये आ गया 88, ये फिर बन गया 100। ठीक है, 28 पॉइंट समथिंग आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी 28.83। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था, क्वेश्चन नंबर 4 था, जो कि अपने को ये वाले लॉजिक की हेल्प से मिला हुआ है। ठीक है, अब मैं एडिशन इन्फॉर्मेशन पे रुकूंगा, बिकॉज था क्या ना, मैं जब सेट पढ़ रहा था तो मेरे को यार नंबर डिस्ट्रीब्यूशन वाला सेट की ये फील ज्यादा आ रही, तो मैंने पूरा सेट को इसी तरीके से परस्यू करा। ठीक है, मेरे को क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो मेरे को एकदम से वैसे ही मिल गए थे, मेरे को मेहनत भी करनी नहीं पड़ी थी, मेरे को नंबर क्रंचिंग करके मैंने निकाल लिया था। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आई रियलाइज कि अच्छा कुछ है जो मैं शायद कर सकता हूँ, तो मैं पीछे जाके मैंने चीजों को फिक्स करा। ठीक है, दीज थिंग शुड बी प्रैक्टिस इन द एग्जाम आवर्स ऑल्सो। ठीक है, अगर एग्जाम में जा रहे हो तो तुमको, बिकॉज ये लास्ट वाला फेज है ना, तुम ये सब चीजें तुमको प्रैक्टिस के साथ अब डेवलप हो चुकी हैं और तुम ये चीजें समझ भी पा रहे होगे। ठीक है, अभी ये चीज मैं मई जून या जुलाई के मंथ में तुम्हें नहीं समझा सकता था, बट अब तुम आराम से क्लिक कर पा रहे होगे तुम्हें ये सब चीजें। ठीक है, अब चलते हैं पॉइंट नंबर, ये जो एडिशन इन्फॉर्मेशन है इसकी हेल्प लेते हैं। एडिशन इन्फॉर्मेशन में क्या लिखा हुआ है, Dina generated the maximum portion of his revenue on that day in the morning business hour and the minimum portion in the night business hour. The amount of revenue generated by Dina in each of the other two business hours were equal and each of them was less than the morning and more than that of the night. यानी कि ये अमाउंट ज्यादा बड़ा है, ये अमाउंट सबसे कम है, और ये अमाउंट दोनों बराबर होने वाला है। दीना का टोटल अमाउंट कितना होने वाला है, यही अमाउंट है 340 वाला, यानी कि इट हैज टू बी 130 130, और 110 वाली 2 होने वाले, और 100 वाले भी 2 होने वाले। ठीक है, ऐसा ही होने वाला था।
110 का एक, 100 वाले दो, और ये वाला। तो अगर बराबर करना है और 5 सर्विसेज बराबर करना है तो हम ये कर सकते हैं कि 110 बराबर कर दें, क्योंकि इस वैल्यू को छोटा होना पड़ेगा इनसे, तभी वो पॉसिबल है। जब मैं 110 रख दूं और 100 रख दूं यहाँ पर, जो रिमेनिंग 100 है वो उसको ऊपर दे दूं, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं अगर ध्यान दो तो। ठीक है, बिकॉज और वाले केस में वो कुछ ना कुछ कंडीशन में कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा, यानी कि 130 मेरे को यहाँ देना पड़ेगा प्लस 100 भी यहाँ देना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि ये वाली वैल्यू यहाँ देनी पड़ेगी, यहाँ पे देना पड़ेगा अपने को 110, 110 और 100। ठीक है, तो ये चीज तो अपना बन गया यहाँ पे। अब इसके अलावा लिखा द लास्ट टायर सर्विस ऑन दैट डे वाज परफॉर्म बाय बिमल। लास्ट टायर सर्विस जो उसने करी वो बिमल ने करी है। अगर ये 150 वाला यहाँ पे आया तो एक जो 150 वो यहीं पे आएगा और किसी के लिए आ नहीं सकता। ठीक है, अगर ये यहाँ पे आया है, अगर ये यहाँ पे आया है 170 150 वाला, तो इनका तो काम हो गया है। अब आगे क्या करा जाए? अब इनके लिए अगर यहाँ पे देखो जो छह मिलने वाले थे वो कौन से थे? 170 वी हैव गिवन, 150 वी हैव गिवन, 130 वी हैव गिवन, 110 है जो यहाँ पे और आने वाला था, तो यहाँ पे आ गया 110। यहाँ पे 100 और 130 वाला अपना बन चुका है। ठीक है, फिर अपना यहाँ पे आ गया नून वाले पे आते हैं। नून वाले पे क्या मिल सकता है? नून वाले का हटाते हैं, अपने को किसके बारे में जानना है? हाउ मच रेवेन्यू वाज जनरेटेड बाय अमला इन द नाइट बिजनेस आवर। अपने को यहाँ पे पहुंचना है ना, अपने को यहाँ से मतलब नहीं होना चाहिए। ये क्या भर रहा है, हटाओ। यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे क्या आ सकता है? 170 170 150 150। नाउ आई एम लेफ्ट विद इसकी कौन सी वैल्यू बची है? इसके लिए दो 100 वाली वैल्यू बची है, इसके लिए दो 130 वाली वैल्यू भी बची है। ठीक है, अच्छा, एक तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो 100 है, ये 100 कहाँ पे आ सकता है? एक 100 यहाँ पे आ चुका है, एक 100 यहाँ आ सकता है या यहाँ पे आ सकता था, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा 130 वाला भी यहाँ पे आ सकता था। अच्छा, यहाँ पे भी ये दो 130 है ना, तो एक 130 आ जाएगा इस जगह पे, एक 130 आ जाएगा इस जगह पे। ठीक है, इसने टोटल 5 कस्टमर्स को डील करा था, जिसमें से 130 है, 150 वाला है, 130 वाला है, 130 वाला है, 110 वाला और 100 वाला, यानी कि यहाँ पे क्या आना चाहिए था? 100 वाला। यानी यहाँ पे क्या बच रहा है? 170 वाले दो हो चुके हैं, 150 वाले दो हो चुके हैं, है ना। 130 वाले दो आने बाकी, तो एक 130 ऊपर आ चुका है, दूसरा 130 यहाँ पे आएगा, और एक बाकी है 110 वाला। यानी कि नाइट वाले टाइम पे ये बंदा कितना कर रहा है? 240। ठीक है, 240। ठीक, चलो। अच्छा सेट था, थोड़ा लेंदी था, और थोड़ा नंबर क्रंचिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा था। मतलब एग्जाम वाले में अगर आता तो पूरा ये शायद तुम्हारा 40 मिनट खा ले जाए, और 40 मिनट से कम ही खाएगा वैसे, बट हाँ ठीक है, करने लायक सेट है, 15 नंबर दे के करा ये। ठीक है, चलो कीप प्रैक्टिसिंग।